پورا ایک لاہ عمل بنائیں گے، ایسے ہی نہیں کہ منہ اٹھا کے چل پڑے، پورا ایک لاہ عمل بنائیں گے جس کی باقاعدہ تشہیر ہوگی. آپ یقین کریں گے، میں آپ کو ایک مزیدار بات بتاؤں، ابھی تازہ تازہ، زیادہ پرانی نہیں ہے، اور اس کی گواہی چوہی صاحب سے ساتھ کے ساتھ لوں گا. آج منگل ہے، سوموار کل دوپہر 2 بجے پی سی ہوٹل میں میرے ایک عزیز کا کے بیٹے کا ولیمہ تھا. وہاں پر مجھے بولڈ ٹی وی سے فون آیا. میں نے کہا بھائی میں تو اویلیبل نہیں ہوں کہ جی ہمیں آپ کو 5:45 اور 6 کے درمیان آپ کو لینا ہے، ہم نے لائیو لینا ہے. میں نے کہا بھائی میں تو ابھی 3 ساڑھے 3 کس وقت فارغ ہوں گا، گھنٹہ ڈیڑھ مجھے پی سی سے گھر بی ایچ اے پہنچنے میں لگ جائے گا. تو آپ ایسے کریں کہ چودھری انور صاحب کو کانٹیکٹ کر لیں، ابھی چودھری صاحب گواہی دیں گے اس بات. میں نے کہا میں اویلیبل نہیں ہوں، تو آپ نے اگر کوئی کسان کا سٹانس لینا ہے تو چودھری انور صاحب. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، نمبر میں نے کہا یہ نمبر ہے، میسیج کر دیا. وہ میسیج ہے میرے پاس. وہ اتفاق ہے کہ وہ 5:45 بجے چودھری انور صاحب کو لیا انہوں نے، آگے پریس کانفرنس آ گئی فواد چودھری، تو وہ توڑ نہیں چڑھ سکے. چودھری صاحب ایسی بالکل یہ مطلب ہماری کوئی، جیسے میں نے پہلے کہا، ہماری کوئی ایک دوسرے کی کوئی بندے مارنے والی دشمنی نہیں ہے. تو کچھ اصولی کچھ وقتی اختلافات ہو گئے تھے جو کسی بھی وقت دور کیے جا سکتے تھے، تو اللہ کرے وہ اختلافات دور ہو جائیں اور چودھری صاحب کے ساتھ چلنے والے ہماری بجائے یہ کہ اپنے عہدوں یا ان کو دیکھیں، ہماری نیت پر شبہ نہ کریں. اسی طرح ہم لوگ کسان کے سامنے سرخرو ہو سکتے ہیں اگر ہم نیک نیتی سے ان کے لیے کوئی جد و جہد کریں. انہی الفاظ کے ساتھ میں واجد ناول صاحب کا دوبارہ سے شکریہ ادا کروں گا. انہوں نے بڑی، اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے، دو روٹھے ہوں کو، دو لڑے ہوں کو آپس میں ملانے والے کا بھی درجہ اللہ تعالیٰ بڑا بلند رکھتا ہے. آخر دعوانا کہ وہ لاہور سے چلے ہیں اور صلح کی خاطر چلے. جب میں ملتان سے چل کے ادھر پہنچا تو جتنے ضلعی صدور بیٹھے، میں نے ان سے پوچھا ایک ہی بار، وہ بیٹھے ہیں سارے، کہ کرنا کیا ہے. راؤ صاحب سب صدر نے اتفاق یہ کیا کہ صلح کرنی ہے. تو میں زیادہ بات نہیں کروں گا، ہم کوئی علیحدہ گروپ نہیں ہوں گے، دونوں اکٹھے ہیں. اور جو آپ کے عہدے ہیں وہ آپ لے لو، عہدے بھی دیں گے اور آپ کی مرضی کے مطابق دیں گے. جو دھرنا دیں گے وہ بھی اکٹھا دیں گے. محمد احمد نے جو بات کی ہے کہ اگر اکٹھے نہیں ہو سکتے تو کم از کم ہم دونوں دھڑے اکٹھے ہو کے دھرنا دے لو. نہیں، ایسے نہیں کریں گے، ہم اکٹھے ہو کے دھرنا دیں گے. زندہ باد، زندہ باد، واہ جی واہ. اور سب سے پہلے یہ باقی دیپال پور جو راؤ صاحب نے میٹنگ کی بات کی ہے، میں دیپال پور کی میٹنگ میں خود آؤں گا اگر یہ ادھر میٹنگ رکھنا چاہتے ہیں. ہم ملتان میں پریس کانفرنس کریں اور اعلان کر دیں کہ ہم پھر دوبارہ اکٹھے ہو گئے ہیں. بالکل اس کا اثر بہت زیادہ ہوگا. اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارا اتحاد ہو رہا ہے دونوں کا، تو پھر بھی ہم دو ٹکڑے رہیں گے. پریس کانفرنس کرتے ہیں. سب سے پہلے مسجد میں حلف دوں گا کہ میری نیت میں 1% بھی کھوٹ نہیں ہوگا. بہت اچھا، بہت اچھا، زندہ باد. اور اس کے بعد راؤ صاحب بھی حلف دیں کہ ان کا بھی نہیں ہوگا، باقی سارے ورکر مطمئن ہو جائیں گے جب ہم مسجد میں دونوں حلف دے چکے ہیں. کیونکہ میں نے پہلے بھی ضلعی صدور جتنے ہمارے مختلف تھے سب کا مسجد میں حلف لیا، اور جس دن سے مسجد میں حلف لیا پہلے میں دیے حلف میں نے اٹھایا.
जिस दिन से मस्जिद में हलफ लिया एक बंदा भी गड़बड़ नहीं हुआ, सारे इकट्ठे। माशाल्लाह। रौ साहब, जहाँ तक आपने ये बात की कि कुछ दोस्त जो हमारे इत्तेहाद को तोड़ गए, अब वो बात नहीं है। जो तोड़ेगा वो खुद ही जाए। बहुत अच्छा जी, जिंदाबाद। अब मैं इतना कमज़ोर नहीं रहा। उस वक्त ज़रूरत ये थी कि किसान इत्तेहाद नया नया बना था, हमें बंदों की ज़रूरत थी। जो भी बंदा मिलता था उसको सीने लगा के ओहदा भी देते थे, उसको प्रोटोकॉल भी देते थे। अब जिस बात पे या जिस नतीजे पे मैं पहुंचा हूं कि जो किसान इत्तेहाद से फारग हो जाए उसकी सिपाही भी बात नहीं सुनता, वो भी पकड़ के अंदर दे देगा। तो मेरी राय है, चूँकि मैं लंबी तकरीर नहीं करनी, रौ साहब ने ज़्यादा बातें कर दी हैं, अब उन बातों को मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहता। जो रौ साहब ने बातें की है मैं सारी बातों से इत्तफाक करता हूँ, और हम कोई दो धड़े अलग-अलग नहीं होंगे, एक ही होंगे। जो आप कहोगे, आपको सबको ओहदे दोगे। मैं बतौर वर्कर अगर चेयरमैन का ओहदा भी लेना है तब वो भी मैं आपको दे दूँगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने कई बार ऑफर की है कि अगर इत्तेहाद हो गया तो फिर तो किसान की खिदमत हो गई, अदरवाइज ये गवर्नमेंट मानने वाली नहीं। कोई शक नहीं। जब हम इकट्ठे होकर चलेंगे, रौ साहब ने जिन दड़ों की बात की है कि वो भी हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं, उन दड़ों को भी हम शामिल करेंगे, मोस्ट वेलकम। क्योंकि हमारी काज एक है। बिल्कुल सही। ये नहीं हम कहेंगे कि ये दड़े के पास बंदे नहीं है जी, चल तू दौड़ जा। उसको भी सीने से लगाएंगे, उसको भी साथ लेके चलेंगे। चलो वो हमारे साथ चलेंगे और हमारी हाँ में हाँ तो मिलाएंगे, और इंशाल्लाह जब हम ये दोनों एक हो गए बाकी दड़े खुद आ जाएंगे। और ये भी मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि जो बाकी दड़े हैं वो भी रौ साहब की पे मैं छोड़ूंगा कि इनकी मर्जी है, उनको शामिल करें या ना करें, मैं उनको भी नहीं कहूँगा, मैं इनकी बात मानूंगा। बहुत अच्छा। जिस दड़े को ये शामिल करेंगे मैं उसको कबूल करूँगा। जो ओहदे हैं बहुत अच्छे बहुत अच्छे। वो हमें लिख के दे दे, मैं सारे ओहदे, मैं अपना ओहदा भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। इत्तेहाद की खातिर, किसान की खातिर, गुड ये गुड बेचारा गुड गुड गुड। जिसकी इतने अरसे से हम 2012 से जंग बहुत लड़ रहे अच्छा हैं, बहुत अच्छा। ये आज जितने माली बहरान में ये किसान है, पाकिस्तान की तारीख में इतने माली बहरान नहीं। और ये मैं आपको बता दूं रौ साहब, अगले महीने 4 रुपए 30 पैसे और FTA पर यूनिट लग रहा है, और ये गवर्नमेंट माफ नहीं करेगी। जिस मुल्क में 150 रुपए लीटर डीजल हो जाए, जिस मुल्क में 10,000 से ज़्यादा DAP का रेट हो जाए, जिस मुल्क में यूरिया की 2 बोरियां लाइन में मिले, वहाँ पे ज़राअत कभी कामयाब नहीं होगी। और अगर हम इकट्ठे नहीं होंगे, हम बेईमान रहेंगे दिल से, तो रोज़े क़यामत अल्लाह को जवाब हम देंगे जिन्होंने इनको बिल्कुल कोई शक हाँ। मैं जब से किसान इत्तेहाद में शामिल हुआ हूँ, हेलो और जब से किसान इत्तेहाद की बुनियाद रख के अस्सलाम। चला हूँ, हमेशा यही हलफ जलसे में भी उठाता था हेलो कि ना खुद बिकूंगा ना आपको बेच के आऊंगा। कोई माई का बोलो लाल यार, जल्दी साबित बोलो कर दे, भाई। कभी मैंने जिंदगी में सरकारी रोटी भी मीटिंग में खाई हो। तो मैं सुबह ज़्यादा राब्ता करें, बात जब नहीं मीटिंग कर चल सकता, जाएंगे, रौल साहब का मीटिंग हो खाना रही भी है। तैयार है। जो रौ साहब कहेंगे मैं वो बात मानूंगा। वेरी गुड। मेरे साथ कोई जिंदाबाद। जिसको वारा खाए वो हमारे साथ चले, वाह जिसको वारा नहीं खाता वो भाई अलग। जिंदाबाद जिंदाबाद मैं रौ साहब की सारी बातें मानूंगा, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो मुझे कहेंगे वो दूंगा। और जिसको अगर ये शौक है कि मैं अलहदा हो जाऊंगा, मुझे ये पता चला कि मीटिंग में किसी ने ये बात की, सबका मीटिंग में तीसरा धड़ा बनने वाला, वो तीसरा धड़ा मस्जिद में कुरान उठा के फिर गया कि कोई धड़ा धुड़ा मैं नहीं बना सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई नहीं धड़ा बन रहा, ये पूरे इकट्ठे हैं। आप आ जाओ,
मैं और रो मस्जिद में आपको हलफ देंगे आप लोगों को, और हलफ के बाद इंशाल्लाह असी नहीं होंगे, जंग लड़ेंगे अल्लाह की रज़ा की खातिर, और जो अल्लाह की रज़ा की खातिर जंग लड़ता है वो हमेशा कामयाब होता है, कभी नाकाम नहीं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अगर कोई सवाल रो साहब से करना है, मुझसे करना है, तो उन सवालों के जवाब देने के लिए हम दोनों बैठे। मैंने बात ही ख़त्म कर दी। मैं तो सर 2 मिनट लूँगा आपकी इजाज़त। चलो जी। देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि मैं राजपूत हूँ और मेरी ज़बान जो है ना और मेरा कॉल जो है ना वही सबसे बड़ी कसम है। तो मुझे ऐसा मस्जिद से जाने की ज़रूरत है। हाँ, ना मुनाफकत करूँगा। नमाज़ा 5 पढ़दा मस्जिद से एक बारी किसान तबार सारे ते दुनियावी काम के लिए, दुनियावी साधु काम। वैसे तो मस्जिद अल्लाह हर किसी को लेके जाए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि चलो तू ना जाए, मैं मैं मस्जिद जो कमिटमेंट करूँगा इंशाल्लाह उस पर खड़ा हूँ। मैं गद्दारी नहीं इसमें मुझे कस्में उठाने की या किसी किस्म का न्याय देने की ज़रूरत नहीं। पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको ये भी बता दूँ चौधरी साहब कि जब एक आदमी हम यहाँ पर आए हैं, मैं अपने साथियों के साथ आया हूँ, तो उसके लिए पहले से हमारी जो एक राय होती है, आपने मेहरबानी की, हम पर एतबार किया, हम पर एतमाद किया, हमें इतनी बड़ी ऑफ़र आपने दे दी। लेकिन आप यकीन करेंगे मेरे जो साथी आए हैं या जो पीछे रह गए हैं उनको मैं एतमाद में नहीं ले सका। ठीक है ना जो साहब, अब ज़हन में ये इतनी बड़ी ऑफ़र नहीं थी हमारी कि आप सारा कुछ ही कहेंगे कि जी वो इतनी बड़ी ऑफ़र हमारे ज़हन में तो ऐसा नहीं थी। ये आपकी बड़ापन है मैं समझ लूँ, या कि आपकी हमसे मोहब्बत है का इजहार है। लेकिन इसमें ये है कि ये मैं कुछ साथी नहीं हैं, कुछ साथी जो आए हुए हैं उनके भी दिल का हाल, और आप यकीन करेंगे जब तक खुल कर डिस्कशन ना हो जाए लोगों के दिल के हाल में, आप किसी की गारंटी नहीं दे सकते। मैं तो किसी के बिहाफ पर मैंने ये देखा है कि मैं भी पाकिस्तानी हूँ और यहाँ सारे पाकिस्तानी बैठे हैं, किसी के लिए कोई किसी की कसम नहीं उठा सकता। ये सच्ची बात बताऊँ, ठीक है ना जी? आए हैं मोहब्बतों के साथ आए हैं, आप लोगों ने मोहब्बतों का इजहार किया है, और मेरी भी यही ख्वाहिश है जो आज पहले पॉइंट पर आप करना चाहते हैं कि हम बिल्कुल 5 साल पहले वाली पोजीशन पर आ जाएं। लेकिन चौधरी साहब बहुत सारे वो कहते हैं ना पानी पुलों से गुजर चुका है, बहुत सारे लोग जो हैं ज़हनी तौर पर किसी और तरफ बढ़ चुके हैं, उनको दोबारा अब माइल करना है। और उसके लिए ज़रूरी ये है कि इकट्ठी जिद्दोजहद जब होगी ना, जब मैदान जंग होगा और महाज होता है, तो उसमें उस महाज के रुफ़क़ा अगर 2 मुख्तलिफ शहरों से हों, 2 मुख्तलिफ मकसद से हों, जब वो इकट्ठे चलते हैं तो उनकी कोई छोटी मोटी जो इख्तलाफात होते हैं या दिल में वैसे ही कोई अगर गलत फहमी होती है वो दूर हो जाती है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप इसको एज अ टेस्ट के ये कहीं नहीं जाने लगे, ये पुराने आपके जानिसार हैं, इतनी बदएतमादी ना करें। इंशाअल्लाह हम एक कामयाबी हासिल करें। मैं तो कह रहा हूँ ना, कामयाबी हुई तो उसका भी क्रेडिट आप ले लेना, मैं नहीं लूँगा। लेकिन बराए मेहरबानी एक एहतजाज अगर हम इकट्ठे हो